Yeah. So there is a very famous writer, or you can say a novelist, Mark Twain. He has said something to us. Open page number 44. 44. Just read it out. Mark Twain. Yeah, what he has said. The more I learn about people, the more I like my dog. Why must he have said this thing? ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. सी we do not have much time and the portion is too vast for us. So फटाफट आंसर्स दो if you know the answer or I'll start the discussion. उनके पास कोई पेट होगा पहले. Maybe हाँ, true. The first thing that one needs is to have a pet ना. If he wants to examine whether the people are good or the pet is good or the dog is good, he should have the pet first. So Mark Twain, yes, he was a very keen animal lover, animal enthusiast. He used to love animals. So he had pet 4-5 animals in his lifetime. 2 dogs, 1 cat and 1 fox also. Yeah, yes. Take. Then only he could have the comparison, right? So he said that the more I learn about people, the more I like my dog. This could be a very bad experience with his acquaintances or with the people around him. Then only he must have said this thing. कि the more जितना इंसानों को जानता है उतना ही ज़्यादा वो किसको पसंद करते हैं? डॉग्स को पसंद करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम, dogs or animals are better than humans for himself. Okay, so first let us know about Mark Twain. Mark Twain was not his real name, it was a pen name. Pen name मतलब क्या होता है? The one who uses a different tag to sell his books or to reach to audience. ऐसे लोग क्यों यूज़ करते हैं? Because their names are little bit bigger and difficult to remember. That's why they use what? A simpler name, very effective name, Mark Twain. So his real name was Samuel Langhorne Clemens. Samuel Langhorne Clemens, born on 30 November 1835 and died on 21st April 1910. So to say this thing, he should have had some kind of a different experience, a very passive kind of experience he could have had around himself or in his lifetime. तो सवाल उठता है किसके ऊपर कि उनकी फैमिली कैसी थी, how were the people around him. So his wife, जो उनकी वाइफ थी, wife's name was Olivia Langdon Clemens. Olivia Langdon Clemens, जिससे उन्होंने शादी किया था 1870 में. Okay, so it is said that his relationship with his wife was not very amusing. Just as everyone has their relationship with each other, so his relationship with his wife was also very complex. हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं
Okay, but he is considered to be a very loving father. उनके total 4 kids थे. कितने थे? 4 kids. 3 out of 4, 3 daughters and 1 son. The son couldn't survive for more than 2 years. 2 साल के अंदर उनकी मौत हो गई थी. ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. दिस इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू द चैप्टर, बस ये एक डिस्कशन के लिए है, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड वाई ही शुड राइट सच थिंग. ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज क्वेश्चन भी वही है अकॉर्डिंग टू लिखा है ना. राइट इन योर ओन वर्ड वाई ही मस्ट हैव सेड दिस थिंग. त्रिशा और गर्ल्स में Shravani. So yeah, like I said, his relationship with his wife was filled with ups and downs. अच्छा relationship था, ऐसा नहीं बोलेंगे कि it was a toxic relationship, but just as usual people fight in their relationships, वैसे fights हुआ करते थे. But father he was a very loving father, बहुत अच्छे father थे, caring father. जो first son था, the only son out of 4 children, he couldn't survive for more than 2 years. 2 बेटियां थी, out of 3 daughters, 2 daughters also, they had a tragic death because of one died because of tuberculosis and the other died because of epilepsy. अब वो पता नहीं कौन सा बीमारी है, मैंने सर्च नहीं किया इतना. एपिलेप्सिस से मरी थी. तो एक ही डॉटर है जो सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी उन्होंने जिया. ऑलमोस्ट आई गेस वो 70-80 ईयर्स तक जिया था एक डॉटर जो थी. ठीक है. सो कमिंग टू द टॉपिक, the more I learn about people, the more I love my dog. The first thing that the first few people that a man knows is his own family, his own friends. तो सबसे पहले कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस कहाँ हुआ रहेगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स में हुआ रहेगा. तो द वाइफ used to be angry with Mark Twain because he was not very caring about money. He was, he used to carelessly spend money on various things and he was very fond of traveling. जिसकी वजह से उनकी वाइफ का झगड़ा होता था इसी चीज़ की वजह से कि दैट ही डिड नॉट यूज टू मैनेज हिज मनी. पैसा मैनेज नहीं करने आ रहा था और हमेशा घूमने का सोचते रहते थे. मतलब ही यूज टू रन अवे फ्रॉम द फैमिली, जिसकी वजह से उनको आती रहेगी गुस्सा और होता रहेगा झगड़ा. तो द whole outcome, what came the outcome? The more I learn about people, the more I like I like the dog. ठीक है. So अब बात करते हैं डिस्कशन की. ओके, ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन सोसाइटी. और ऐसा भी नहीं था कि ही वॉज वेरी एडमायर्ड एट दैट टाइम. These writers are now considered as one of the best writers. Even he is considered as father of American literature. ऐसा एक दो जन का मानना है. कोई लोग ऐसे क्लेम कर देते कि he should be considered as what? Father of American literature. But during that time, their work or their writings were not well appreciated. They used to write on many different topics. ऐसा लिखते थे कि लोगों को पसंद नहीं आता था. So when people used to not adore him, इनको क्या देते रहेंगे? वो क्रिटिसिज्म देते रहेंगे. वो अच्छा नहीं लगता रहेगा. और इन्होंने क्या लिखा फिर फाइनली? हाँ, कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ करेक्ट. बट टेल मी,
विल इट बी करेक्ट फॉर एवरीवन? हमारे सबके लिए क्या होना चाहिए बताओ? Who among you think that animals are better than humans? कौन ऐसा सोच सकता है? Anyone is there? या क्यों? Yes, बेसिकली यही एक रीज़न होता है कि why. हाँ बोलो दूसरा. क्योंकि सर एनिमल ज़्यादा वफादार लॉयल होते हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं. दे डू नॉट हैव अ कल्प्रिट माइंड. दे डोंट इंटेंड टू चीट यू और बिट्रे यू ऑफ एनी काइंड. ऐसे बहुत सारे केसेस है कि एनाकोंडा पेट था, वो एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था. बाद में जब साइकोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि वो क्यों नहीं खा रहा, हाँ. तो मालूम पड़ा कि अपने मालकिन को खाने के लिए अपने पेट में जगह बना रहा है. ये गलत है ऐसा. ये इम्पॉसिबल है. दिस सच कुड बी में. द ओपिनियन. ये ट्रू नहीं हो सकता ना. ये funny. एनाकोंडा था 20 फीट का. अच्छा एनाकोंडा. एनाकोंडा. ओ कौन कौन कौन? हाँ. विच एनिमल? कैट. हाँ, कैट्स आर वन काइंड ऑफ कनिंग एनिमल होते हैं. दे आर वेरी सेल्फिश एनिमल. तो विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड्स. एनिमल्स रखने के अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं और एनिमल रखने के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. ओके ठीक, थैंक यू. सो क्या बोलने जा रहा था मैं कि या बेसिकली जो बिट्रियल पार्ट होता है, जो डिच करने वाला पार्ट होता है, जो डिसऑनेस्टी होती है ह्यूमन्स के अंदर, व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स वी डू नॉट टॉक इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर. डिसलॉयल होते हैं, ठीक है, चीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. वी ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर. इसी की वजह से हमें सबको लगता है कि या इट्स बेटर टू हैव अ डॉग दैन टू बी सराउंडेड विद डिसऑनेस्ट पीपल. ओके, सो मेरा ये कहना है ना, इन माई आर्ग्यूमेंट आई वुड से दैट दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू द अर्लियर एक्शन. ये ऐसा ओपिनियन क्यों फॉर्म हो रहा है लोगों का? लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इट्स बेटर टू हैव अ डॉग दैन टू हैव अ एनिमल? बेसिकली डॉग नहीं भी रखेंगे, इवन इफ वी डोंट कीप अ पेट, बट वी स्टिल बिलीव ना कि एन एनिमल वुड नॉट हर्ट मी दैट मच एज अ ह्यूमन कुड डू. सब मान रहे हैं ये चीज़? वाई? सोचो कैसे हो सकता है ये? Animals को तो हम लोग बंद करके रखते तो कैसे अटैक भी करेंगे हमारे ऊपर? एनिमल्स आर काइंड ऑफ इनोसेंट क्रीचर. वैसे होते हैं. दे डू नॉट हैव दैट वेल डेवलप्ड माइंड जो इतना खुरापाती कर सके, राइट? उतना इंटेलिजेंस नहीं होता है. इंटेलिजेंस का जो IQ जो लेवल होता है उनका बहुत ही कम होता है. इट्स वेरी मच इक्वल टू द 1 or 2 year old किड. मैक्सिमम से मैक्सिमम एनिमल जो इतना स्मार्ट हुआ है वो कितना हुआ है? डॉल्फिन. तो बेसिकली डॉल्फिन एंड एलिफेंट्स हैव बीन वेरी स्मार्ट क्रीचर्स. कुछ एलिफेंट्स तो ऐसे हैं कि व्हेन दे आर टॉट पेंटिंग एंड ऑल, वो पेंटिंग भी कर सकते हैं. ऐसा तो आप सबने देखा रहेगा, पर वो ट्रेनिंग का हिस्सा है. आई डोंट थिंक कि उनका खुद का आया होगा ऐसे. या या yes, and dogs have a adaptive mindset also. dogs देखो इंसानों के आसपास रहना आता है. nowadays जो dogs हैं they can only survive around humans. अगर उनको अभी हम अकेले जंगल में छोड़ देंगे ना, मे बी दे वोंट सर्वाइव, बिकॉज अब उनका हैबिटेट क्या हो चुका है? ह्यूमन सोसाइटी हो चुका है. तो आई क्लेम दैट कि ये जो हमारा जो ये ओपिनियन फॉर्म हुआ है दैट इज़ नॉट अ वेरी ट्रू ओपिनियन. ये एक तरीके से रिस्पॉन्स है टू द अर्लियर ओपिनियन. पहला क्या था हमारा? व्हेन वी आर अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अफेक्शन दैट वी कुड डेवलप इज़ विद अ ह्यूमन. ये सब मानते हैं कि गलत मान रहे कोई भी? इज़ देयर एनीवन हु डिसएग्री विद दिस थिंग? बीइंग अ ह्यूमन, अब वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अफेक्शन, सबसे पहला जो रिश्ता हम बना सकते हैं लोगों से, या प्यार का जो रिश्ता बना सकते हैं, दैट इज़ विद अ ह्यूमन बीइंग. ट्रू है? हाँ, एक्सेप्ट यू आर मोगली, बट वो तो एक क्या हो गया? एक इमेजिनरी केस हो गया है. दैट हैज़ नेवर बीन
एबल टू हैपन, वो तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो हमने कभी, हमें पता भी नहीं है कि वॉज देयर एनी ह्यूमन बीइंग हु हैज़ सर्वाइव्ड विद अ कार्निवोरस एनिमल और हु हैज़ सर्वाइव्ड विद मंकीज एंड ऑल, टार्जन जैसा, वो तो हमें कुछ पता नहीं है, राइट। तो पहला जो हमारा जो रिश्ता होता है, द फर्स्ट एक्शन इज टुवर्ड्स द अदर ह्यूमन। बीइंग अ ह्यूमन आई एम यू नो अट्रैक्टेड टू अदर ह्यूमन्स फर्स्ट। सबसे पहला हमारा रिश्ता किससे बनता है? मम्मी से बनता है, पापा से बनता है, भाई बहन से बनता है। देन दे ब्रिंग अस द पेट, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट लेके आएंगे तो शायद हमारा उससे फ्रेंडशिप हो जाता है। बट फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी डेवलप इज विद द ह्यूमन्स इटसेल्फ। सो ऐसा होता है ना कि व्हेन दैट इनिशियल लव इज अनफुलफिल्ड, जब वो पहला जो हमारा रिश्ता होता है, जब वो अनफुलफिल्ड हो पाता है, जब वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता है, तब हम क्या करते हैं? वी रन फॉर द सेकेंडरी अफेक्शंस। पहला प्राइमरी अफेक्शन किससे होता है? हमारा ह्यूमन से होता है। बीइंग अ ह्यूमन। डॉग का किससे होएगा? ऑब्वियसली अगर डॉग उसकी मॉम के साथ है तो ही वुड नॉट चूज यू ओनली बिकॉज ही इज़ नॉट अराउंड विथ हिज फैमिली। वो आपको पसंद कर रहा है डॉग, आप उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं हो। तो ह्यूमन्स का भी फर्स्ट चॉइस कौन रहता है? ह्यूमन्स इटसेल्फ, राइट। तो ये हमारा एक एक्शन था विच डिड नॉट गिव अ प्रॉपर रिएक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर रिएक्शन मिला नहीं उससे मुझे। मैंने इनको रिस्पेक्ट दिया, मैंने इनको प्यार दिया, लेकिन मुझे इनसे क्या नहीं मिला? रिटर्न प्यार नहीं मिला मुझे वो। नाउ आई वुड गो एंड रन फॉर और चेज अदर अफेक्शन, अदर वे ऑफ अफेक्शन। क्या हो सकते हैं दूसरे और तरीके? क्या हो सकते हैं प्यार, यू नो, खुश रहने के, अफेक्शनेट फील करने के? दूसरे लोगों की तलाश करके ना। नहीं, बेसिकली नो ह्यूमंस ना हो ना। our experience with humans have been completely spoiled. एनिमल्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, क्रिएशन हो गया, आर्ट हो गया, सही बोल रहे हो, एक हो गया आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग, एवरी आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट हो गया। सेकेंड होता है नेचर। हमने बात किया था उस बार कि बेसिकली वाई वी chase the nature because we are not able to form a good connection with the humans first. इंसानों से रिश्ता अच्छा नहीं बनता है, तभी हम भागते हैं दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, आर्ट हो गया, नेचर हो गया, एनिमल्स हो गए, एंड ऑल्सो सम रिलीजियस आइडल्स। कब जाते हैं? जब दुख हो रहा होता है, जब दूसरे से हमारा रिश्ता खराब हो चुका होता है, राइट। तो दिस इज योर रिस्पॉन्स। ये क्या है? ये एक्शन नहीं है। माई फर्स्ट एक्शन वॉज टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स द ह्यूमन्स। वो एक्शन का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया तो मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया? फिर ये है मेरे सारे रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है। सो एनीवन हु इज ट्राइंग टू लव एन एनिमल और बीइंग वेरी इंडल्ज्ड इनटू आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट, या फिर बीइंग टू रिलीजियस, क्यों है वो सारी चीज़ें क्यों हो पा रहा है? बिकॉज वी कुडंट मेक अ वेरी ट्रू कनेक्शन विद द प्राइमरी सोर्स। हमारा प्राइमरी सोर्स क्या था? लव का, ह्यूमंस थे, वो नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने क्या किया? दूसरों से रिश्ता बना लिया। ओके, तो मे बी मार्क ट्वेन, ही मे हैव गॉन टू द वर्ल्ड, ही मे हैव ट्राई टू फॉर्म कनेक्शंस विद अदर्स, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब जाके उन्होंने किससे रिश्ता बनाया? ये सिर्फ एक असम्पशन है यार। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम ऑल्सो, he had money, that's why he was wasting that money on other things। ठीक है, पर ऐसा जो लिखा है, ये लिखने से हमारा माइंडसेट कैसा डेवलप होता है कि नाउ आई वुड नॉट बिलीव एनी ह्यूमन, आई वुड ट्रस्ट ओनली एनिमल्स। और आज के टाइम पे ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स भी है ना। पीपल आर नॉट मैरिंग, पीपल आर नॉट मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अफेक्शन टूवर्ड्स अ बुक, टूवर्ड्स एन एनिमल, टूवर्ड्स आर्ट। अकेले बंद होकर क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं अपना। ये गलत है कि सही है? ये सही है कि गलत है ये वाला? हाँ, उस इंसान के लिए सही है। उस इंसान के लिए सही है, बट मैं वही बता रहा हूँ, उसके लिए अब ये सही हो गया है बिकॉज दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ अफेक्शन ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ अफेक्शन क्या था उसका? ह्यूमंस थे। ही हैज़ फेल्ड इन दैट थिंग, उसमें वो फेल हुआ है। देन दैट्स व्हाई ही इज नाउ सर्चिंग फॉर सेकेंडरी सोर्सेज। कोई यूपीएससी फेल हो गया तो बैठ
दूसरे काम करेगा ना, वैसे ही उसको जब प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं किया तो सेकेंडरी के पास वही मैं बता जाएगा। रहा हूँ ना कि पहला चीज़ क्या था, ह्यूमन्स ही था। तो बट व्हेन वी रीड सच कोड्स और व्हेन वी कीप रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, मन में क्या हैबिट डेवलप होगा, इंसानों से नहीं बनाना है, इंसानों से नहीं बनाना है। डोंट सराउंड योर सेल्फ विथ सो मेनी पीपल, डोंट सराउंड योर सेल्फ, डोंट बी सोशल, जस्ट बी एन इंडिविजुअल। सेल्फ की बात कराई जाती है ना, फिर जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट यू लव, नॉट whom you love, what you love। what मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग, whom मतलब जिंदा चीज़, राइट। तो फर्स्ट दो केसेस मैं आपको देता हूँ वाई समवन वुड से सच थिंग। फर्स्ट ये होगा कि दैट ह्यूमन बीइंग ही ट्राई टू मेक रिलेशन विथ अदर ह्यूमन्स, उसमें क्या हुआ, ही केप्ट सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड सिचुएशंस विद द ह्यूमन्स। जैसे कि एक से दोस्ती किया मैंने, ही टर्न्ड आउट टू बी सेल्फिश, उसने सेल्फिशनेस की वजह से क्या किया, मुझे बिट्रे कर दिया या फिर फ्रेंडशिप ब्रेक कर दिया विद द अदर वन। ही ऑल्सो डिड सेम सिमिलर थिंग्स, उसने चीट किया मुझे। तीसरे ने क्या किया, डिसऑनेस्टी दिखाई, एंड वी केप्ट यू नो वी केप्ट गेटिंग अवे फ्रॉम द सच पीपल, और हम दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर 4 years आई डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी और बिकॉज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर्स, ठीक है। तो पता चला मैंने कुछ 5-6 इंसानों से मेरी दोस्ती टूट गई, ठीक है। सुन रहे हो आप लोग, कहाँ देख रहे हो तुम लोग, हाँ कहाँ देख रहे हो? वो सो आई वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कि हाउ मेनी पीपल आर लिविंग मी इन दिस मच टाइम। तो 4 साल की बात किया मैंने, 4 साल के अंदर पीपल केम एंड पीपल वेंट अवे बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, ओन इश्यूज एंड ऑल, ठीक है। तो इन ड्यूरिंग दोज टाइम आई ऑल्सो सॉ दैट, आई ऑल्सो विटनेस दैट माई डॉग who lives in my home has always been loyal to me, has always protected me, was always excited to meet me, unlike other humans। जिन लोगों ने मुझे छोड़ते गए या फिर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से दे केप्ट लिविंग। रीजंस हो सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी हुई है, देयर वर रीजंस टू लीव द रिलेशनशिप। बट मैंने देखा 4 साल के अंदर वो डॉग मेरा कंसिस्टेंटली मेरा साथ दे रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा फिर, डॉग अच्छा हो गया, राइट। हाँ, तो इन दिस केस आई विल ऑल्सो अग्री विद द कोट, यस द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लव माई डॉग। ये हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि यू वेर द लॉयल पर्सन एंड यू कुडंट फाइंड एनीवन हु वाज एज लॉयल, एज ऑनेस्ट, एज गुड एज यू। तो आपको क्या लगा फिर कि दुनिया में ढूंढने से अच्छा क्या है, खरा सोना तो मेरे पास ही खड़ा हुआ है, वो डॉग जो हमेशा हमसे मिलने के लिए एक्साइटेड रहता है, ही कीप्स लविंग मी, राइट। और डॉग्स ऐसे होते ही हैं, वो सच में इतने ट्रूली लव करते हैं ना। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने क्या अभी किसको इम्पोर्टेंस दे दिया, फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स पे आ गया मैं। ये तो हो गया एक केस। नाउ टॉक अबाउट द अदर केस इन विच, फर्स्ट केस में क्या हुआ, यू वेर द गुड पर्सन, ओके, आप हो गए अच्छे इंसान। तो आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आपका कंक्लूजन क्या हुआ कि द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग। बिकॉज यहाँ पे आप जान रहे हो कि मैं अच्छा था, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट पीपल केप्ट लिविंग मी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मे बी योर ओन बिहेवियर वॉज नॉट गुड, maybe you were not able to create such environment in which people could come and breathe with you। शायद आप ही वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएटर हो जिसकी वजह से लोग आ तो रहे हैं लेकिन बार बार जा रहे हैं। बट स्टिल इन दिस केस ऑल्सो द डॉग इज स्टिल देयर विथ यू। मे बी you are being good with the animals, but you are being too conditional or too, you know, you have set high standards with the humans that कोई भी इंसान आप तक
आपको ना उस लेवल तक कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है आपसे, बिकॉज मे बी यू हैव सेट हाई स्टैंडर्ड्स, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपसे सिर्फ बात करने के लिए उसको अपने बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा उसको अपनी लाइफ में, राइट? पर ऐसा क्यों होता है तो हम कोड वगैरह लिखते हैं तो किसी कंडीशन के बेस पे आपने भी हजारों कोड्स लिखे होंगे, यही बता रहा हूं ना। तो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे होंगे ना। बट प्रॉब्लम इज वॉट कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर कंडीशन, वो एक यूनिवर्सल की तरफ पहुंच जाता है हमारे पास। यस, आई हैव ऑल्सो फेस द सेम थिंग। हाँ, ये बस सही बात है। ये इंसानों से अच्छे कौन है? डॉग्स हो गए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक पर्सनल कंडीशन पे नहीं लिखेंगे ना, ही मे हैव सीन अदर्स ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, राइट? तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, तब जाके वो कोट रिलेटेबल बना है। रिलेटेबल बना है इसलिए यहाँ तक आया है। जैसे अगर आज से 2-3 साल पहले आपका कोई बुरा दिन था, उस दिन आपने लिख दिया कि हाँ। कि इंसानों से ज़्यादा अच्छे कुत्ते, हाँ। आपका दिन अच्छा गया तो अगले दिन थोड़ी ना आप सेम माइंडसेट हाँ, रखने तो वाले हो। लेकिन ये नहीं हो पाया ना ऐसा। इट मीन्स ये जो कोट कंसिस्टेंट क्यों रह पाया? वाई डिड ही पब्लिश दिस कोट? कर दिया होगा। नहीं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहा था, शायद ये कंटिन्यूअस रहा होगा, जो लगातार चल रहा होगा उसी को उन्होंने उठा के रखा है ना। अगर एक इमोशनल कोट होता वो, जैसे कि सिर्फ इमोशन, आउट ऑफ इमोशन ही हैज़ रिटन समथिंग, तो उनको क्या करता वो दबा के रख देते हैं। हम बुरी चीज़ों को दबा के रख देते हैं अगर हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, पर बुरी चीज़ें लगातार हो रही हैं इसलिए वो चीज़ जिंदा है। ये भी तो हो सकता है ना। वो तो लिखा गया होगा 1990s में, 19th सेंचुरी में। हाँ। हाँ, अब तक कैसे चलता हुआ आ रहा, तब तक Relatable है ना। चेंज हो गई होगी ना कंडीशन। नहीं, रिलेटेबल है ना। अभी देखो, रिलेटेबल लग रहा है ना उसको, बहुत लोगों को रिलेटेबल लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है। बट उसका मैं आपको क्या निकाल रहा हूँ? बाल की खाल निकाल रहा हूँ कि वाई एम आई फीलिंग सच थिंग। मैं वो फील ही क्यों कर रहा हूँ? जो मैं फील कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट रॉन्ग। इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू लर्न अबाउट ह्यूमंस द मोर यू लाइक अ डॉग। ये सच है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जिंदगी भर डॉग के साथ ही रह जाओगे। हाँ, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मे बी दे वुड ट्राई टू लिव। और ऐसे लोग केसेस हुए हैं ना। पीपल डू love animals so much that they do not choose to marry, they do not choose to have kids, they leave their family because of protecting animals, because of animal love। तभी तो बताया जा रहा है ये चीज़। ऐसे सेम केस था कि कैलिफोर्निया हो गया था। हाँ। एक डॉग था जो कि इंजर्ड हो गया था, जैसे एक आदमी ने उसको पाला, फीमेल था, तो उसने बहुत टाइम तक उसे केयर किया और उसके पास बहुत सारा लैंड था, तो वहीं पे साथ में रहा। जब उसकी शादी हुई तो वो डक ना उससे नाराज होने लगी, गुस्सा करने लगी उसके ऊपर। और जब भी वो उसके पास आता था ना, तो वो मतलब पंख वगैरह फटफटाना हो गया, चोंच मारना हो गया, वो सब करती थी। मेरा ये कहना है कि सी इवन एवरी वन कुड लव एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है एनिमल से। वो हमारा एक इनर फियर होता है विच कीप्स अस एट डिस्टेंस फ्रॉम द एनिमल्स। पर जैसे ही आपको वो एनिमल थोड़ा सा आप जान जाओगे ना, आपको भी सच में अटैचमेंट हो जाता है विथ एनी एनिमल्स। इवन आई बिलीव दैट कैट्स आर कनिंग एनिमल, बट स्टिल एक वाइट कैट थी, दूसरे की कैट थी, वो हमारे बिल्डिंग के फ्लोर पे आती थी, एंड आई स्टार्टेड हैविंग अफेक्शन टूवर्ड्स हर। और अच्छा लगने लगा कि मैं उस समय तक मैंने मैं वीगन हो गया था, फिर भी मैंने उसके लिए वो सूखी मच्छी होती है वो लेके आया, ठीक है। जबकि मैं एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ बाय नहीं करता था, फिर भी मैंने उसके लिए सूखी मच्छी लेके आया क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। इतनी अच्छी लग रही थी कि उसके लिए पोयम तक लिखा, मैंने पोयम तक लिखा है, ठीक है। अ वेरी रिलेटेबल पोयम, उसी के ऊपर ही लिखा था मैंने पोयम। एंड देन फाइनली उसके कुछ दिनों के बाद पता चला कि दैट शी हैड डाइड। ओके, उसने कोई चूहे खा लिए थे शायद, उसकी वजह से उसका पेट गड़बड़ हुआ और वो मर गई। तो ऐसा होता है कि सपोज़ आपके ह्यूमन कनेक्शन अच्छे नहीं बन रहे हैं, पर उसी टाइम पे आपके पास अगर डॉग है ना, तो आप ऐसा हो जाएगा कि आप डॉग से ही फ्रेंडशिप कर लोगे, डॉग को ही अपना सब कुछ मान लोगे। एक कोई ह्यूमन बीइंग है जिसने कहा है आई वॉज एबल टू लिव मोर देन 80 years ओनली बिकॉज ऑफ डॉग्स। डॉग्स ने उनको पर्पस ऑफ लाइफ दिया, ठीक है।
इसलिए इतना बात करना पड़ रहा है. So in the other case, I told you all that maybe we are that toxic person जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, एंड पीपल आर स्टिल लिविंग मी, बट दैट डॉग इज स्टिल देयर बिकॉज डॉग को आप डॉग से बात तो करते नहीं हो, यू डोंट शेयर योर ओपिनियंस विद डॉग. हाँ, फाइट कैसे होता है इंसानों के बीच में? किस किस चीज़ों में फाइट होता है इंसानों के बीच में? बातों से होता है, डिसएग्रीमेंट होता है. लाइक वो आई बिलीव इन दिस थिंग, यू बिलीव इन दैट थिंग, आई कम एट दिस टाइम, यू कम एट दैट टाइम, मैं इतने काम कर रहा हूँ, तुम उतने काम कर रहे हो, उसी में हो जाता है फिर कॉन्फ्लिक्ट. बट डॉग का आपको पता है डॉग कुछ काम तो करेगा नहीं, एक ही काम कर सकता है, खाना खाएगा और रखवाली करेगा, एंड यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट डॉग. इसलिए आपका डॉग के साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा. बट ह्यूमन्स के साथ आप चाहते हो कि वो मेरे मन को समझ जाए, मेरे मन के उस लेवल तक पहुंच जाए, डीप कनेक्शन फॉर्म होए, और उसकी वजह से क्या होता है, वो कनेक्शन जो बना भी रहता है वो टूट जाता है. तो हम क्या फिर बिलीव करने लगते हैं कि द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लव माई डॉग. सर ये तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मतलब ये तो एक तरीके का वो हो गया ना कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और वो जानवरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रखते. ही नहीं रहे हैं. तो अगर हम इंसानों के साथ भी इतना एक्सपेक्टेशन उनसे इतना उम्मीद नहीं करेंगे ना, तो भी लाइफ जी सकते हैं. वही चीज़ है कि एक एक्सेप्टेंस का जो एक हमारा वो होता है ना, फेज़ होता है कि हाँ ये जैसा है जैसा भी है रहने दो, बट आई एम कमिटेड टू दैट पर्सन. चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप हो, जब कमिटमेंट आ जाएगा ना, कैसा भी होगा हो जाएगा सब कुछ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सच में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो भी हमें उसको टॉलरेट करना पड़ेगा. नहीं, इतना भी कमिटमेंट नहीं होना चाहिए. एक बैलेंस में बना के रखो सब चीज़. और सर उतना केपेबल नहीं है ना, उसे कॉन्शियसली Yes. एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं. इंसान है केपेबल उसमें. हाँ, प्रॉब्लम यही तो बात है ना कि हमारा जो इंटेलिजेंस है यही एक तरीके से कर्स है हमारा. आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग अदर्स टू बी इक्वली इंटेलिजेंट. यही तो प्रॉब्लम है. घर पे फाइट्स क्यों होते हैं मेरे? बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना स्मार्टली मैं कुछ काम कर रहा हूँ उतना ही स्मार्टली हर कोई काम करे. इसकी वजह से हो जाते हैं झगड़े. अब यहाँ पे क्यों हमारे डिसएग्रीमेंट्स, स्कोल्डिंग्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट स्टूडेंट कि वो ये काम करके आएगा, ये होमवर्क करेगा, एग्ज़ाम में इतना स्कोर करेगा. ठीक है, ये तो कर्ज है इंटेलिजेंस का. कॉन्शियसनेस जो है चीज़, थिंकिंग जो है, ये इसी का कर्ज है. तो इट इज़ ट्रू दैट कि हम स्टैचू से बात तो कर नहीं सकते, डॉग से बात तो कर नहीं सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि उनकी तरफ अपना अफेक्शन दिखा सकते हैं. एक्सपेक्टेशन लेस अफेक्शन जो होता है, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ओनली अफेक्शन, वो होता है डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, या फिर कोई रिलीजियस आइडल हो गया हमारा, या फिर हमारे काम के प्रति हमारा जो अफेक्शन हो जाता है. वो सारी चीज़ों से हम क्या करने लगते हैं, वी स्टार्ट वी स्टॉप फॉर्मिंग कनेक्शन ऑल्सो. अब इसका कॉन्सिक्वेंस यही क्या है कि 4-5 अच्छे बैड एक्सपीरियंस की वजह से क्या हो जाता है, सब खराब हो गया. अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे. ये उसका ड्रॉबैक है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये ड्रॉबैक हो सकता है इसका. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो ये मार्क ट्वेन है, मार्क ट्वेन वॉज अ वेरी रिनोन्ड राइटर. ठीक है, जो भी काइंड ऑफ आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो डांसर हो जाए, सिंगर हो जाए, शाहरुख खान जैसे एक्टर हो जाएं, ठीक है, या एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट हो जाएं, ठीक है, ये सब लोग में एक तरीके से एक तरीके का मानोगे कि ये लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, मानोगे? देन ओनली ही इज़ एबल टू. शाहरुख खान का एग्जांपल अगर ले लूँ मैं, शाहरुख खान अपने फ़ैन से बहुत प्यार करता है, पर अगर फ़ैन साइड से निकल जाता है, यू थिंक शाहरुख खान वुड शो एनी रिस्पॉन्स टू एनीवन? अगर आसपास कैमरा है तो शायद दिखा देगा, पर कैमरा ना रहे, देखो. और इनके काम के प्रति, द मोर इंटेलिजेंट, द मोर स्किल्ड पर्सन यू आर, द मोर द ईगो इज़ देयर. डायरेक्टर्स को देखा है कितने एटीट्यूड में रहते होंगे? अगर आपको ऐसे अज्यूम होता होगा, डायरेक्टर का कितना एटीट्यूड रहता होगा. सिंगर, डांसर्स, मैम का ही एग्जाम्पल लो, सिंगर ना, शी वॉज नॉट अलाउिंग एनी परफॉर्मेंस विच वॉज नॉट इवन अप टू द मार्क. तो एक तरीके से ये क्या हो सकता है, ये मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए.
तो एक आप बोल सकते हो कि जितने ज़्यादा आर्टिस्ट, आप जितने बड़े आर्टिस्ट रहोगे उतना ही ज़्यादा आप में घमंड आ सकता है, चांसेस रहेंगे। तो मे बी मार्क ट्वेन हैड ऑल्सो टू मच ऑफ ईगो, इतना ईगो उनके अंदर भरा था कि ही हैड सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल, कि अगर आपको मुझसे बात करना है तो इस लेवल तक आना पड़ेगा आपको, और कोई उस लेवल तक रीच नहीं कर पाता होगा, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा शायद। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये चीज़, राइट? तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट शुड वी कंक्लूड विद द डिस्कशन देन? चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए। एंड या बीइंग अ सोशल एनिमल, ठीक है, सोशल एनिमल है तो डोंट बी एंटी सोशल। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्रेक दैट बॉन्ड विद द सोसाइटी और विद योर ओन फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। ये जो हमारा सोसाइटी चल भी रहा है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक तरीके से वी ऑल आर द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। अगर हम एक पहिया निकाल देंगे अपने आप को सोसाइटी से, ठीक है, ना तो हम चल पाएंगे बिकॉज वी आर जस्ट अ व्हील। हम क्या है, कोई व्हीकल नहीं है हम बड़े जो अकेले चल सकते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल। वो इंडिपेंडेंसी लाने के लिए मैं अगर अपने आप को सोसाइटी से कट कर दिया तो एक पहिया कहाँ तक चलेगा? हाँ, कहाँ तक चलेगा एक पहिया? समझो अपने आप को आप एक कार नहीं हो, अब क्या हो, सिर्फ एक व्हील हो, एंड व्हील नीड्स द फुल कार। काम अगर आना है व्हील को तो कार के अंदर बना रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। कार के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, राइट। अगर कार ब्रेक लगा रहा है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्पीड कर रहा है तो स्पीड में जाना पड़ेगा। सो या एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, मॉडरेशन होना ज़रूरी है। आई नीड टू रिस्पेक्ट एवरी अदर थिंग अलॉन्ग विथ माई ओन फैमिली, फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। डोंट लूज कम्प्लीटली योर सेल्फ इन सर्च ऑफ लव। ऐसा भी नहीं कि प्यार के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर दिया हमने, वो भी नहीं करना है। बट ऐसा भी नहीं हो जाए कि प्यार सामने है बट स्टिल आई एम नॉट लेटिंग माई सेल्फ डाउन, आई एम नॉट रेडी टू लोअर माई ईगो। क्या हो गया, तुम लोग का ध्यान नहीं लग रहा है अभी? हाँ नहीं, ये थोड़ा थोड़ा मुझे आभास होने लगता है ना। सेंस करने लगता हूँ। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि पहले बात तो अपना ईगो एकदम ज़ीरो भी नहीं करना है प्यार की वजह से, और अपना ईगो ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ये भी गलत है। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वो एकदम स्टिफ सीमेंट ब्रिक्स की तरह नहीं मत रखो अपने ईगो को, ब्रिक्स की तरह नहीं, ब्रिक्स को भी हिल नहीं सकते हैं। या फिर क्या बोलेंगे, डोंट बी कम्प्लीटली लाइक अ स्टिफ वुड। लकड़ी की तरह मत हो जाओ कि लकड़ी को बेंड नहीं हो सकती है। फ्लेक्सिबल बनो, फ्लेक्सिबिलिटी रहना ज़रूरी है। लाइक अ ट्री, ओक ट्री जो होते हैं, ओक ट्री का एग्जांपल दिया जाता है कि ओक ट्री ना, नो मैटर हाउ मच स्टॉर्म इट फेसेस, कितने ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाते हैं, ओक ट्री इतना हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बट ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। स्टैंड स्टॉल रहता है, लास्ट में अच्छे से खड़ा रहता है, बट अकॉर्डिंग टू द वेदर वो चेंज भी होता रहता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अगर अपने आप को बचाएगा नहीं, बेंड नहीं होगा ज़रा सा भी, तो क्या होगा, हवा उसको तोड़ देगा। इससे अच्छा क्या है, हवा की दिशा में चले जाओ, जहाँ हवा ले जा रहा है वैसे लेके जाओ, बट टूट मत जाना। अपने आप को बचाने के लिए वैसा करना है, राइट। आपका जो माइंडसेट है, मॉडर्न माइंडसेट क्या हो रहा है कि मॉडर्न माइंडसेट सेज दैट फॉर द सेक ऑफ योर ओन लाइफ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एनी अदर, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग। ये माइंडसेट हमारे मन के अंदर डाला जा रहा है। वो जैसे जैसे आप लोग सोसाइटी से और जुड़ोगे, अभी तो क्या जुड़े हो, टीचर, स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यू आर नॉट कम्प्लीटली रिलेटेड टू द सोसाइटी। अभी बहुत कुछ है, अभी कॉलेज है, वर्क है, ठीक है, बहुत कुछ है अभी आपके लाइफ में। तो मे बी वहाँ पे कोई ऐसा थॉट तो नहीं आ रहा है, घूम रहा है, जैसे ऐसे थॉट्स घूमते रहते हैं ना,
कि डोंट बिलीव एनीवन, डोंट ट्रस्ट एनीवन, नो वन इज़ योर्स, आपका कोई नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है. इवेंचुअली वी हैव टू बिलीव समवन, वी हैव टू बी विथ समवन, वी हैव टू ट्रस्ट समवन. ये कंक्लूजन है मेरा. और मैं आपको अब इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ कि व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल बिकम टू मच अफेक्शनेट विथ डॉग, टू मच लव फॉर डॉग या टू मच एनिमल्स के लव से क्या होता है. अभी रिसेंटली कुछ मैंने न्यूज़ सेव किया है, आपको मैं देख रहा हूँ, बाहर कहीं भी देख रहे हो आप लगातार, ठीक है. ये एक तरीके से इंसल्ट मत करो. इफ़ यू आर सिटिंग इन द लेक्चर, सोशल बिहेवियर जैसा अंजलि ने बोला है कि इवन दो वी डोंट वांट टू लिसन बट वी स्टिल कीप दैट सोशल बिहेवियर, वो रखो. समझे? कान में कितना जा रहा है, कितना यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, नो वन कैन फाइंड आउट, बट स्टिल कीप अप दैट बिहेवियर. ओके. तो अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस आए थे इन इंडिया इटसेल्फ, पुणे की बात है, 4 अगस्त की बात है वो. अ मैन नेम मंजीत कौर, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, पुणे पुलिस, बिकॉज ही हैड बीन इन अ फाइट विद अ नेबर वुमेन बिकॉज ऑफ हिज ओन डॉग. अपने डॉग की वजह से एक औरत से ऐसा झगड़ा किया उसने कि दैट इन दैट फाइट ही बिट द फिंगर ऑफ दैट वुमेन. फिंगर को ही काट लिया. इतना गुस्सा आ गया था उसको, क्यों, मेरे डॉग को तुमने ऐसा क्यों बोला. द वुमेन, द नेबरिंग वुमेन, शी मेड एन एलिगेशन, शी मेड अ कंप्लेंट टू दैट ओनर ऑफ द डॉग कि इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन डॉग माई सन हैज़ गॉट सम आई डिसीज, आँखों का कोई डिसीज़ हो गया उसको, शायद वो होते हैं ना कंजक्टिविटीज़ हो गया रहेगा या फिर कुछ तो हुआ था, मतलब वो डॉग्स के अराउंड घूम रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ वो डॉग को ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहा होगा शायद वो डॉग, उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डॉग की वजह से मेरे बेटे को हो गया ये चीज़. चाकू से काटा? नहीं, चाकू से नहीं, ऐसे दांत से काट लिया, बिट कर लिया. ठीक है. क्यों किया उसने? बिकॉज उसको गुस्सा आ गया है. ही इज़ टू इंटेंस लव फॉर दैट डॉग, स्टार्टेड शोइंग ऑफ कि तूने मेरे डॉग को ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला. तो उसने डॉग की वजह से किसको हानि पहुंचाना शुरू कर दिया? अपने आसपास के ह्यूमंस को. वन ओल्ड मैन फ्रॉम बैंकॉक, 62-year-old man, he was found dead in his own house. He was dead for almost 7 days. When there was raised a complaint about this thing, तो पुलिस आई और पता चला कि डॉग वो मर गया है और उसके घर के अंदर 7 to 8 डॉग्स हैं. There were 7 to 8 dogs who all were hungry. तो वो ओनर तो मर चुका है. नाउ हु वुड प्रोवाइड द डॉग्स फूड? कोई नहीं. तो डॉग्स ने क्या किया, उसका लेफ्ट लेग बचा उनके आसपास था, शायद वो डॉग्स ना, आई गेस दे वर ट्रैप्ड और दे वर केप्ट इन कस्टडी. तो वो डॉग ने उस ओनर के लेफ्ट लेग को ही खा खा के अपना गुजारा किया. और सारे लोग ने नहीं, सारे डॉग नहीं, 2-3 डॉग उसमें मर भी गए थे. एंड द डॉग्स हु कुड रीच अप टू दैट लेग, उसने डॉग्स को लेग्स को खाया, वो लोग ने पैर को ओनर के, मरे हुए ओनर के, और वो लोग ने अपने आप को ज़िंदा रखा. तो आफ्टर द केस वॉज रिवील्ड, एनिमल जो एनिमल सिक्योरिटी, एनिमल सेफ्टी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया कि हाउ कम द डॉग्स आर केप्ट इन कस्टडी, और कैसे एक ओनर इतने सारे डॉग्स को रखा है एंड ऑल. तो अगेन द केयर एंड कंसर्न वॉज टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स द डॉग, नॉट टुवर्ड्स द एनिमल. जो अकेला इंसान 62 years old का अकेला इंसान था, अब उसका क्या रहा होगा? सोचो, वो अकेले क्यों रहा था इतने सारे डॉग्स के साथ? छोड़ के चले गए। एक्सपीरियंस ख़राब हुआ रहेगा. एक चॉइस हो गई रहेगी, नहीं आई वांट टू लिव विद डॉग्स. ये होता है, ट्रेजिक एंड हो सकता है आपका. इन वन मोर केस, अभी अपने इंडिया का केस है वो, 5th फ्लोर से एक डॉग ऊपर गिरा एंड इट फेल्ट डायरेक्टली ऑन अ 3-year-old किड, 3-year-old चाइल्ड. गर्ल के ऊपर गिरा और गर्ल ऑन द स्पॉट डाइड. कुत्ता भी मर गया. शायद कुत्ता बच गया होगा, तो लोगों को वैसे भी दे हैव अ वेरी गुड इम्यून ना, शायद वो बच गया हो.
भाई न्यूज़ पढ़ूंगा तो पता चलेगा, बट आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये तीसरा केस हो गया, ठीक है, कि अब वो ओनर ने डॉग रखा रहेगा, डॉग ने कुछ खेलने के चक्कर में या ओनर ने फेंका रहेगा, कुछ भी किया रहेगा, दैट डॉग डायरेक्टली फेल ऑन होम, ऑन द किड, वो हो गया ट्रेजिक एंड। मतलब मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ कि एनिमल्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और मुझे भी एक आर्ग्यूमेंट पेश किया गया था मुझे भी, कि मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे मुक्ति मिलेगी ना, मुझे सबसे प्यार हो जाएगा, डॉग्स, एनिमल्स, सारे ह्यूमन से प्यार किया हो जाएगा। ऐसा ऐसा एलिगेशंस दिया गया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बताना। वन पर्सन गेव दिस आर्ग्यूमेंट टू मी कि मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब मुझे मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति मतलब धर्म के रास्ते वाली मुक्ति, यू नो, जब मन आपका एकदम हमेशा स्ट्रांग रहता है एंड यू डोंट नीड एनीवन, दैट इज़ कॉल्ड मुक्ति, फ्रीडम, वो मिलेगी तो मुझे किसी इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे डॉग से प्यार, मुझे एनिमल्स पसंद आ जाएंगे, मुझे सारे के सारे इंसान प्यार इंसानों से प्यार आ जाएगा। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? ये ऐसे ऐसे थॉट्स आजकल मन में घूम रहे हैं, और वो थॉट्स कोई और नहीं बल्कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यही लोग फैला रहे हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जो आपको यू नो मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मोटिवेशन प्रोवाइडर्स, नॉट दैट वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स नहीं जो आपको कुछ और चीज़ बेच रहे होंगे, या गेमर्स नहीं, नॉट द गेमर्स। जो पॉडकास्ट पे आते हैं ना, पॉडकास्ट कौन कौन सुन रहा होता है यहाँ पे? कौन कौन सुनता है पॉडकास्ट? उनके ओपिनियंस देखो, आपके मन को ज़रूर से यू नो दे कैन चेंज योर माइंड, बिकॉज दे आर सेइंग दोज थिंग्स ओनली टू चेंज योर माइंड। पॉडकास्ट पे क्यों आते हैं लोग? डिस्कशन करने के लिए। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू कीप एट द बैलेंस। कहीं आप ज़्यादा एक्सट्रीम में ना चले जाओ। एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसको सेल्फिशनेस कहते हैं, ईगो कहते हैं, उसमें ना चले जाओ, इसके लिए बचाने की कोशिश की जा रही है। बस किसी को अपने बारे में मत सोचो, दो चार लोगों के बारे में सोचा करो, सारे लोग के बारे में नहीं, दो चार, अपने से दो चार लोग के बारे में सोचोगे ना, तो हर कोई दो चार की बात कर रहे हैं, हर कोई दो चार की सोचेगा ना। ऐसा करो, आप एक की मदद करोगे, वो अगला अच्छे की मदद करेगा, ऐसे वाला, ठीक है। तो एक मैंने वो कोट लिखा था, वो कोट आप लोग लिखो। Human connection is the primary source of love and affection. डबल कोटेशन मार्क वाला डाल के बड़ा कोट है वैसे तो। Human connection is the primary source of love and affection. Full stop. When this initial love is unfulfilled, human connection is the primary source of love and affection. When this initial love is unfulfilled, 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 comma, people often turn to turn to secondary sources of comfort and attachment. When this initial love is unfulfilled, people often turn to secondary sources of comfort and attachment, comma, such as nature, art, animals, or God. However, these secondary loves loves are mere substitutes
आर mere, mere मतलब MERE, जस्ट, mere कब बोलते हैं? जस्ट, गॉड के बाद क्या था? MERE, mere, merely होता है ना, merely. सर वो गॉड के बाद क्या है? However, these secondary loves are mere substitutes. जो एक जो जगह जो हर्ट हो चुकी है उसी का दवा बन के आता है दूसरी सारी चीज़ें ये, है ना? However, these secondary loves are mere substitutes as the true and most profound love, as the true and most profound love is the love between humans. ये कौन से लेटर्स में आप लिख रहे हो ये सारी चीज़ें? कैपिटल्स में ऐसे थोड़ी लिखते हैं कोड्स को. कोड्स को मतलब ऐसे दिखाई दे. वो क्या था प्रोफाउंड लव के बाद? As the true and most profound love is the love between humans. और आई डोंट थिंक कि इससे डिसअग्री भी कर पाओगे इस चीज़ से. सबसे पहला रिश्ता हमारा इंसानों से ही बनता है. माता पिता से झगड़ा हो जाता है तो हम भाग जाते हैं दोस्तों के पास. दोस्तों से झगड़ा होता है तो हम भाग जाते हैं मास्टर्स के पास. फिर मास्टर्स के पास झगड़ा करने की हिम्मत ही नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा सबमिट कर देते हो ना. सबमिशन आ जाता है ना, राइट? सबमिशन मतलब यू कम्प्लीटली गिव अप योर एटीट्यूड, योर ईगो, और पूरा का पूरा उनके हो जाते हो. इसके लिए फिर वहाँ से आपका झगड़ा कभी होता ही नहीं है. ये कोट है, ये मैंने ही लिखा है, ठीक है? सो नाउ उसके बाद क्या करते हैं? लेट अस जस्ट डिवाइड ऑल द बिहेवियर्स दैट अ ह्यूमन डज एंड द एनिमल्स डू. ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो सिर्फ ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते, या फिर एनिमल्स करते हैं सिर्फ? दोनों का भी होता है. हमें अपने नेचर को कंट्रोल करने पड़ेगा. लव एंड केयर करते हैं. मदर्स होते हैं ना, एनिमल्स आर मदर, फादर, डॉटर, सन, सब होते हैं वो लोग. तो सिर्फ इंसानों में होते हैं. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड नहीं, थैंकफुलनेस तो होता है यार. एनिमल्स के अंदर भी होता है थैंकफुलनेस. अगर आप उनको जैसे कि बिस्किट दो तो नेक्स्ट टाइम देखो पूंछ हिला के आते हैं आपके पास, वो थैंकफुलनेस ही है, वो होता है. ओनली ह्यूमंस. स्विम दोनों करते हैं. इसमें 3 कैटेगरीज हैं: ओनली ह्यूमंस, कॉमन टू बोथ, एंड एनिमल्स. एनिमल्स का क्या है? कम्युनिकेट तो दोनों करते हैं. कम्युनिकेट दोनों करते हैं. एनिमल्स, ओनली एनिमल्स. आपका नहीं हुआ है तो कर लो ना, फ्रेश रुपये तो करो. ओनली एनिमल्स. Gives birth to children. Boom. मतलब जो अपना आप इंडिया ऐसे उठा सकते हैं वो होते हैं हमारे कुछ एलियन होते हैं, डिजर्ट होते हैं जो आउट होते हैं. कैसी बात है? मुंडी पूरा मुंडी ऐसे. हाँ, कुछ लोगों के आइज भी ऐसे करते हैं. डिजर्ट से होते हैं वो मुंडी वाले. बैट्स के होते हैं, बैट्स का नहीं होता है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन ऐसा है कि द डॉग्स आर मोर लॉयल, मोर ऑनेस्ट, ठीक है, एंड मोर लविंग टूवर्ड्स देयर ओनर. दैट्स वाई डॉग्स आर मोर प्रिफरेबल बिकॉज डॉग्स ऑलवेज ओबे. ह्यूमंस डोंट ओबे. एक ही इंसान आपको सरेंडर हो सकता है जो ब्रेन वॉश हो चुका है, या तो वो आपके प्यार में ब्रेन वॉश हो चुका है, या तो फिर वो दूसरी चीज़ों में ब्रेन वॉश हो चुका है.
सरेंडरिंग पार्ट जो होता है, सरेंडरिंग का मतलब ये होता है कि अपनी ईगो को ख़त्म कर देना होता है, और वो तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत बहुत लोगों के लिए होता है impossible। Next है, at times especially when you are frustrated, you wish you were an animal, maybe a bird, fish or whatever। और क्या लिखा है, एंड नॉट अ ह्यूमन बींग, से विच ऑफ द अबाव यू वुड चूज टू ट्रांसफॉर्म टू एंड गिव 3 or 4 रीजन्स। कौन सा एनिमल आप बनना चाहते हो इफ़ यू गेट द चांस टू बिकम एन एनिमल, ओनली बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड बीइंग एन ह्यूमन। ऐसा नहीं कि मैं शेर बनना चाह रहा हूँ, सिर्फ शेर वाला मत बोलो, कौन सा एनिमल बनना चाह रहे हो जिससे आपको खुशी मिलने वाली है, आपका सिचुएशन ये ख़त्म होगा, बैड सिचुएशंस आर गोइंग टू गो एंड यू विल लिव लाइक एनिमल्स हू नॉट हैव मच वरी, जिनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। हमें देखो टेंशन कितने होते हैं, अच्छे मार्क्स बनाने के, अच्छे पैसे कमाने के, अच्छे रिश्ते बनाने के, राइट, अच्छी जगह रहने का, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा सब चाहिए, पर जानवरों को नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, कौन समझता है कि एनिमल्स आर लोअर और इंफीरियर देन अस, यू नो, सम इन अ बैड वे? इंटेलिजेंस मामले में तो कम होते ही है, और वैसे देखा जाता है इक्वली फाइट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम इंसान को प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे ज़रूर से। ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्वेश्चन किया जाए कि whom would you save, your younger brother or your pet from falling of the from falling somewhere, किसको बचाओगे? भाई को बचाएंगे। और वो का सेल्फिश हो जाएगा, वो ऐसा करना सेल्फिश हो जाएगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहला फॉरमोस्ट जो हमारा प्राइमरी सोर्स है लव का, वो ह्यूमन है। डॉग्स जीते हैं 15 साल, उसके बाद क्या करोगे? दूसरा डॉग मंगा लोगे, उसके साथ वो करोगे, क्या बोलते हैं, धोखा करोगे। इसलिए मच रिलायबल अभी भी ह्यूमंस ही हैं, नो मैटर हाउ मच बैड द सिचुएशंस वी फेस, पर इंसान ही है जो कुछ कर सकता है हमारे लिए। हाँ, जू एनिमल, रेस्ट करके सब कुछ मिलेगा, बट फिर तो वही ह्यूमंस वाला ही हो गया ना। यू आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन दिस सोसाइटी, यू कैन नॉट डू वॉट यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो अभी भी आप ट्रैप ही हो गए, फिर तो ह्यूमंस ही रह गए आप तो। जू मतलब अराउंड ह्यूमंस हो गए आप। ऐसा कौन सा एनिमल बनोगे जिससे आपका दुख तकलीफ मिट जाए? बर्ड, वाई अकॉर्डिंग टू यू बर्ड? अरे सुनो, इतना का डिस्कशन क्या चालू कर रहे हो? वैसे भी कौन सा बात कर लिया आपने इतना? हाँ, तो उनका भी शायद ट्रीज होते हैं ना ऐसे कि दिस ट्री इज एलोकेटेड फॉर दिस काइंड ऑफ बर्ड्स, ऐसा होता रहेगा शायद, है ना? आसमान में, हाँ, आसमान तो पूरा होता है। शेरों के जो होते हैं इलाके होते हैं, अपने इलाके को छोड़ के वो जाते नहीं हैं। अगेन दैट लायन इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग who is trying to possess something। एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंस ये होता है कि ह्यूमंस कुछ चीज़ों को हथियाना चाह रहे हैं, पर लायन भी हथियाना चाह रहा है। वहाँ पे तो एरिया मेरा है ये। हाँ, खराब कर देते हैं। हवे में उड़ते तो ये निकल आके बोलता है ये एरिया मेरा है, इस एरिया को नहीं उड़ सकते। और फिर किसी पेड़ पे जाते तो कहता है कि ये पेड़ है, ये एरिया हमारा है, तो मैं पेड़ पे नहीं बैठ सकते। तो बोलते इंसान बनना ही सबसे ज़्यादा सही है। बर्ड्स की लाइफ ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली यस, किसी की लाइफ इजी नहीं है। whoever is breathing on this earth is suffering in some way। कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहा होता है।
क्या बन जाएंगे? स्लॉथ। क्या क्या बन जाएंगे? वो क्या होता है? स्लॉथ बियर। लेजी लेजी, वो लेजी बोल रहा है। अच्छा अच्छा, वो कोआला कोआला होते हैं, कोआलास। अच्छा वो स्विमिंग करता है और एक ही जगह पे दौड़ दौड़ घूमने पड़ा रहता है, बहुत तेजी होता है। इसी चीज की फिगर एक्चुअली में बैर बनना थोड़ा आसान रहेगा। क्यों पता है? बैर, भालू 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 एक ओमनिवर होता है। ही कैन फाइंड फूड एवरीवेयर। नो वन ट्राइज टू अटैक द बैर। बैर अटैक कर सकता है उसको, शायद मुझे लगता नहीं शेर वेर भी आके अटैक करते हैं। वो बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा फियरफुल होता है वो एनिमल। फियर मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता है, ठीक है। तो बेयर बनना अच्छा रहेगा। कुछ भी खा सकता है वो, उसको एक सांप का फिश खा सकता है, मीट खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, और बीज हनीज ले सकता है एंड ऑल, बहुत कुछ खा सकता है वो। आप क्या बन सकते हो? लेकिन एक दूसरे जानवर में लड़ाई तो होनी है, लड़ाई तो होनी है, वो तो है। सांप बियर मधुमक्खी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है ना, और प्लस बहुत हार्ड वर्किंग होता है। इसकी रन तो मारने की आदत है सर। जेलीफिश ब्रेन होता है वो लोग को। इलेक्ट्रिक फिश, ईल नहीं होता। ईल शार्क बनना चाहिए। वैसे एक्वेटिक लाइफ किसको पसंद है? एक्वेटिक लाइफ, मुझे रेंज डेवलप हाँ एक्चुअली वो ऑक्टोपस होते हैं ना, चिपचिपी होते हैं। शेप चेंजर्स, कलर चेंजिंग वाले, कितने खतरनाक होते हैं वो। तो उनका एक इतना- तरह से एडेप्टेशन है ना। व्हाट अ गुड predator एडेप्टेशन, से बचने पूरा के लिए। मैजिक की तरह होता है वो काम। बट साइंस है वो भी, है ना। उनकी बॉडी भी चिपचिपी होती और क्या बनेगा? कोई श्रवण क्या बन सकते हो? क्या बनना चाहोगे बताओ? गिरगिट? Alligator. नहीं वो बताएगा, वो उसको बताने दो ना। है। रेड वो बदलता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करोगे बन के? वो बनेगा पैरामीशियम। रह सकता है, या एक ना एक पेज लिख के लाओ ये वाला चीज़, गिव अ गुड रीज़न। हाँ मेरा लेक्चर आ गया क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। एक पेज लिखो इसके ऊपर, गो थिंक एंड राइट, एक अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करो उसके अंदर, ठीक है। सोच के लिखो क्या अच्छा लिख सकते हो और क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए वो एनिमल बनना। हाउ कैन इट हेल्प यू ओवरकम योर ओन प्रॉब्लम्स, और वो एनिमल से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो आप। चलो एनिमल बन भी नहीं पाओगे ना, बट बेसिकली व्हाट कैन यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट एनिमल विच कुड हेल्प यू इन एनी वे, इन सम वे। वो करो, करके आओ। राइटिंग स्किल्स तभी आपका डेवलप होगा व्हेन यू विल थिंक। रीड और थिंक करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा।